Hello students, in session 2 of dividend decisions, today we will study the determinants of dividend. These determinants are the factors which is considered by company while devising their dividend policy. So today we will study 10 factors, 10 determinants that decides what dividend policies a firm is going to adopt for its organization, right? So the first one is liquidity. What do we mean by liquidity? Liquidity here means the cash position of the company. Cash position at the end of the year when profit and loss statement is prepared, then the book profit of the company, that means the net profit of the company, may or may not be equal to the cash position of the company, because we are writing books of accounts in accrual form, and also maybe the cash is reinvested in the modernization, expansion, or blocked in the business operation of the firm. So how much cash is available with the company at the end? Out of that cash only dividend will be declared. So dividend policy first depends upon the cash flow that is generated in operating activities of the company, and also the availability of cash at the end, right? If a company has liquidity crunch or cash crunch, then dividend will not be possible. Why? Because dividend is paid in cash only. So if a company is a cash rich company, such companies may go on giving not only final dividend but interim dividend also. For instance, companies like TCS and Infosys, they are cash rich company. So these companies not only declare final dividend, but in between the two annual general meeting also they go for interim dividends also, because they have good liquidity, they have good cash position. So liquidity and cash position is one factor, one determinant where a company which decides what should be the dividend policy of the company. Next one obviously is the growth plan of the company. Growth plan means the future projects that the company is planning to invest in. If a company is growing, that means it has many feasible, viable projects or investment opportunities where they can expand the business operation or where they can increase the income or profit, then definitely they would need more money, more funds, and these funds can be used by way of retaining the earning for the year. So if the firm has good growth plans, then definitely the payout ratio will be low. पेआउट रेशियो विल बी लो मीन्स जितना कमाई कर रहे हैं उसमें से जितना डिविडेंड दे रहे हैं वो कम होगा. रीजन बीइंग वी नीड मनी टू री इन्वेस्ट इन द बिजनेस. व्हाई? बिकॉज वी हैव ग्रोथ प्लान, सो वी विल रिटेन मोर. And if a company has no growth plans or maybe some smaller growth plans, they don't have much investment opportunity जहाँ पैसा लगाया जा सके. So in that case, whatever earning they have, they would like to distribute it in cash in the form of dividend. So in that case, dividend policy will be affected. So a company which has good investment opportunity or growth plans will have low payout ratio, and company which does not have much feasible investment opportunity जहाँ पैसा लगा सके, where to put in money, so such company will have high payout ratio. That means the earning that they will have for the year, most of that earning will be distributed as dividend. So this is how the dividend policy is affected by the future growth plans or the future capital requirement for the company, right? The third important factor is control. What I mean by control here is the management control. We all know shareholders are the ultimate owners of the company, and theoretically shareholders in all the strategic decision making, shareholder has a say, because all the major strategic decision making is done by voting of shareholders in annual general meeting. So in case let's say company is giving out a good dividend, that means they are not retaining the profit. So for financing all its future requirement of cash, they will again have to go for external market. External market means they will again have to bring money from maybe issue of equity shares or by borrowings.
If further equity share will be issued, then more shareholders will be added in the company, and the control of existing shareholder will be diluted, right? So how much control the existing shareholders wants to retain in the firm? अगर वो अपना कंट्रोल पूरा चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि और नए शेयर होल्डर्स ऐड ना हो, क्योंकि नए शेयर होल्डर्स ऐड होंगे मींस नई वोटिंग राइट्स ऐड होंगे, नई वोटिंग राइट एड्स होंगे तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के हाथ से डिसीजन मेकिंग कंट्रोलिंग डाइल्यूट हो जाएगी, ज्यादा लोगों में बंट जाएगी। और वो कब होगा? जब कंपनी और इक्विटी इश्यू करेगी। और इक्विटी इश्यू करने की जरूरत कब आएगी? जब कंपनी के पास रिक्वायरमेंट है कैपिटल लगाने की, प्रोजेक्ट्स हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, एक्सपेंशन प्लान्स है, लेकिन उन्होंने अपनी अर्निंग को रिटेन नहीं किया, डिविडेंड के फॉर्म में दे दिया। So in such case where company want to retain the control, definitely they will pay less dividend, so that more money is by the way of internal accruals, internal generate हो रही है वो पैसा जो हमें फ्यूचर में लगाना है। Why? Because company is not paying dividend. So अगर कम डिविडेंड देंगे तो ज्यादा पैसा रिटेन करेंगे और उसी पैसे को हम लगा देंगे अपने फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट्स में, राइट? सो और इक्विटी नहीं लानी पड़ेगी और शेयर्स नहीं इश्यू करने पड़ेंगे और कंट्रोल जिनके हाथ में है उन्हीं के हाथ में रह जाएगी। सो दिस इज वन अनदर मेजर फैक्टर जो कंट्रोल डिविडेंड पॉलिसी कंपनी की डिसाइड करती है। अनदर वन इज द मैग्नीट्यूड एंड ट्रेंड ऑफ कैश फ्लो। मैग्नीट्यूड एंड ट्रेंड ऑफ earnings. This is one very important and major factor, and this is one core first deciding factor. जितनी अर्निंग होगी डिविडेंड भी उस हिसाब से ही होगा, डिविडेंड पॉलिसी भी उस हिसाब से ही बनी जाएगी। नाउ हियर द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड एंड ट्रेंड इज, मैग्नीट्यूड इज द अमाउंट ऑफ अर्निंग। अगर अर्निंग का अमाउंट बहुत अच्छा है और उतनी रिक्वायरमेंट कैपिटल की एक्सपेंशन प्लान और मॉडर्नाइजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट में नहीं लगाना है तो कंपनी कैन गो फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग मोर डिविडेंड। ट्रेंड मीन्स जो कैश फ्लो जनरेट हो रही है कंपनी की, उसका पैटर्न कैसा है, उसका ट्रेंड कैसा है, क्या वो इरेगुलर है या हमेशा इतना कैश फ्लो आ ही जाता है कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन से। ऑल दीज फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट इन डिसाइडिंग व्हाट द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी। इफ द कंपनी हैज अ स्टेबल अर्निंग, स्टेबल कैश फ्लो, and if the business risk is less and cash flow is more or less certain, then company can go for making a dividend policy which is stable, which is steady. Why? Because their earning is what? It has a pattern. Their earning is certain, so they can go for stable also. Otherwise also, if the magnitude and trend of earning is irregular, then accordingly company will have to decide its dividend policy. So their dividend will also be irregular. So this is another factor. This is first factor कि जितनी earning होगी आपका dividend भी उसी हिसाब से होगा। Another factor is the life stage of the company. Life stage of company here means एक company newly established company has to go in its whole lifetime in phased manner. So initially the first phase will be the introductory phase when company is trying to establish itself in the market. Then comes the growth phase, then maturity, and then decline, right? This is company's phases of life. सो कंपनी किस फेज में है, किस स्टेज में है अपनी लाइफ के, उस पर भी डिपेंड करता है कि कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी कैसी होगी। फॉर इंस्टेंस इन इंट्रोडक्टरी स्टेज में कंपनी इज अनसर्टेन कि आगे के बिजनेस ऑपरेशंस कैसे होंगे और जो रिक्वायरमेंट है कैश की वो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जनरली इंट्रोडक्टरी स्टेज में अभी कंपनी के पास प्रॉफिट आनी शुरू नहीं हुई है। दे आर स्टेब्लिशिंग, दे आर ट्राइंग टू make their position in the market, right? So in that case requirement of cash to be plugged back in the business is more, और cash भी कम होगा, expenses भी higher होंगे। उस point of time पे company dividend ज्यादा pay नहीं कर पाएगी। If we talk about the growth stage में the requirement of money is huge because now the company is accepted in the market. It has to expand its business operation in other locations and increase the size of the business also. तो उनकी requirement ज़्यादा है, earning हो भी रही है तो company has to plug back this internally generated fund.
बट मेच्योरिटी स्टेज में क्या होता है, कंपनी का एक्सपीरियंस अर्निंग का बहुत बड़ा हो जाता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट, एक कंपनी एक लेवल पे पहुंच जाती है जिससे फर्दर स्कोप नहीं है उसको बिजनेस में आगे बढ़ने का, तो वहां पे जो अर्निंग हो रही है उसमें कैश ज्यादा जनरेट हो रहा है और कंपनी को उस कैश का यूज नहीं है, इन दैट केस डिविडेंड विल बी पॉलिसी विल बी डिफरेंट. सेकेंडली इन डिक्लाइनिंग स्टेज ऑल्सो डिविडेंड पॉलिसी इज अकॉर्डिंगली. सो कंपनी किस लाइफ स्टेज पे है, किस लाइफ फेज से गुजर रही है, उस पर भी डिपेंड करता है कि कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी कैसी होगी. ऑलराइट, अनदर नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ कंपनी. Nature of company here means which industry the company belongs to, कंपनी की इंडस्ट्री की रिस्क प्रोफाइल कैसा है. सो इफ इट इज फॉर एग्जाम्पल इज अ पब्लिक यूटिलिटी कंपनी, एक पब्लिक यूटिलिटी इंडस्ट्री की प्लेयर है कंपनी, सो हेयर द बिजनेस रिस्क इज लेस बिकॉज दिस products and services will be demanded in all the economic phases, whether it is boom or depression. वहां पे सेल्स बहुत फ्लक्चुएट नहीं होगी. इन दैट केस कंपनी कैन हैव अ stable or steady dividend policy. But for a company where the business risk is very high, that means there is a lot of fluctuation in sales, in that case उन companies की dividend policies अलग होगी. So dividend policy कैसी होगी, ये इस बात पे बहुत डिपेंड करती है कि वो जो कंपनी है वो किस इंडस्ट्रियल सेक्टर को बिलोंग करती है, इस कंपनी का नेचर क्या है. सो मैन्युफैक्चरिंग एंड हाई रिस्क कंपनीज, ये जितनी कंपनीज है, दे विल हैव अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी देन the companies where there is less uncertainty in business, there is less uncertainty in risk and income. ऐसी कंपनीज की डिविडेंड पॉलिसी अलग होगी. तो नेचर ऑफ कंपनी पे भी, नेचर ऑफ इंडस्ट्री पे भी डिपेंड करता है कि डिविडेंड पॉलिसीज कैसी होगी. दूसरा 7th पॉइंट अगर हम इस कंसिडर करें तो इट मे बी द टैक्स पॉलिसी. नाउ टैक्स पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ व्हाट? नाउ लिसन very carefully. A company has to pay corporate tax at the rate of 30%, और अब ये रेट चेंज हो गई है लेकिन हम अभी 30% ही मानते हैं. 30% कॉर्पोरेट टैक्स रेट देती है. फिर उसके बाद वी हैव प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. वो जो टैक्स देने के बाद प्रॉफिट बचती है दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स. अभी तक क्या रूल था कि जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है डिविडेंड उस पे भी टैक्स लगता था विद द नेम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, और वो टैक्स होता था 15%. दैट मीन्स जो इनकम ऑलरेडी 30% टैक्स हो चुकी है उस पे फिर से जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक टैक्स और लगेगा विच इज 15%, जो सरचार्ज और सेस के बाद 18% निकलता था. राइट, ये कंपनी अपनी देने से पहले कट करके टैक्स फिर शेयर होल्डर के हाथ में देती थी, और शेयर होल्डर के हाथ में जब वो जाती थी तो वो शेयर होल्डर की इनकम बनती थी, एंड नाउ शेयर होल्डर इज लायबल टू पे टैक्स ऑन दैट इनकम, डिविडेंड इनकम जो उसके हाथ में आई है, लेकिन वो डिविडेंड इनकम शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स फ्री होती थी. अब तक ये रूल था. इस फाइनेंशियल ईयर से ये रूल चेंज हो गया है. इस फाइनेंशियल ईयर से ये जो डीडीटी है जो कंपनी को पे करना होता है एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, वो खत्म हो गया है. अब ये जो डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में जाएगा तो वो उनके इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से टैक्स होगा. तो जो जिस टैक्स ब्रैकेट में आता है उस हिसाब से डिविडेंड इनकम को टैक्स देगा. सो ये जो टैक्सेशन पॉलिसी है ये भी मैटर करती है कि डिविडेंड कैसा होगा. जनरली क्या होता है, एक जो 30% टैक्स देने के बाद फिर से 15% टैक्स देते हैं तो ये बहुत बड़ा टैक्स हो जाता है एक ही प्रॉफिट पे, तो शेयर होल्डर के हाथ में कम पैसा जाता है. तो कई बार कंपनी ये भी डिसाइड करती है कि इंस्टेड ऑफ पेइंग कैश डिविडेंड कंपनी फिर बोनस इश्यू कर देती है, क्योंकि बोनस में टैक्स के जो इम्प्लीकेशन है वो थोड़ा अलग हो जाता है. सो टैक्स पॉलिसी एक पर्टिकुलर कंट्री की कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है कि डिविडेंड कैसा, डिविडेंड की पॉलिसी कंपनीज कैसी बनाएगी. राइट, सो दिस इज अनदर पॉइंट, द टैक्स पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट जो डिविडेंड को इफेक्ट करता है. अनदर पॉइंट इज गवर्नमेंट policy. So tax policy is different from government policy. Government sometimes restrict the rate of dividends for some products, for some industries. ये गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी होती है. तो गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर
इंडस्ट्री का या कंपनी का टैक्स पॉलिसी कैसी हो सकती है। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट कंपनीज लॉ में ये चेंज करती है कि डिविडेंड किस तरह से रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, डिविडेंड की क्या कंडीशंस हो सकती है, वो सब बातें हमारे इफेक्ट करेगी किसको, कंपनी की डिविडेंड पॉलिसीज को। अनदर पॉइंट हियर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। Requirement of institutional investor. Now what is institutional investor? जो पर्सन या जो एंटिटी शेयर खरीदती है कंपनी की या जो इन्वेस्ट करती है कंपनी में ओनरशिप कैपिटल में, दो टाइप के होते हैं। या तो रिटेल होते हैं लाइक मी एंड यू, तो हम कंपनी के शेयर खरीदते हैं, हम रिटेल इन्वेस्टर हैं। कई बार बड़ी बड़ी कंपनीज या बड़ी बड़ी एंटिटी या बड़े बड़े पर्सन बहुत बल्क में कुछ मेजर परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग लेते हैं, परसेंटेज ऑफ ओनरशिप कंपनी की ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर LIC ऑफ इंडिया किसी ABC कंपनी के शेयर खरीदेगी तो वो 4% 5% ऑफ द टोटल कैपिटल खरीदेगी, राइट? तो जब ये इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें हम कह रहे हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सो ऑल म्यूचुअल फंड्स, LICs और NBFCs और जितने इस टाइप के बैंक्स जो एंटिटीज हैं या HNIs हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, इनको हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं। इस पॉइंट में मैं एक चीज और जोड़ देती हूँ, हमारे बोरोवर्स भी हमारे क्रेडिटर्स इन्वेस्टर्स हैं। उनके साथ एक डील जब होती है, बोरोवर जब हम डिबेंचर और बैंक लोन लेके आते हैं तो एक डिबेंचर और डेट कोवेनेंट साइन करते हैं जिसमें रेस्ट्रिक्शन होता है कि डिविडेंड कब दे सकते हैं, डिविडेंड से पहले क्या क्या हमें किटी बनानी पड़ेगी रिडम्पशन की या व्हाटएवर। सो रिक्वायरमेंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की क्या है, उस हिसाब से भी एक कंपनी को अपनी डिविडेंड की पॉलिसी को रखना होगा। सो डिविडेंड पॉलिसी इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय द रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और द डिबेंचर होल्डर्स और द डिबेंचर ट्रस्टीज। तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी डिविडेंड पॉलिसी इफेक्ट होती है। नेक्स्ट अनदर पॉइंट इज द स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। नाउ जब हम इस स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि कभी कभी मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी होती है कि हम डिविडेंड एक स्टेबल करके दें, क्योंकि कई बार कंपनी जो स्टेबल डिविडेंड देती है, दे हैज गुडविल इन द मार्केट, दे अर्न्स अ रेपुटेशन इन द मार्केट। कई इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिनको रिक्वायरमेंट कैश की होती है, तो उन्हें एक रेगुलर कैश मिलता रहे तो उन्हें वो शेयर का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अच्छा लगता है। लाइक द पेंशनर्स और द ओल्ड पीपल, उन्हें रेगुलर फ्लो ऑफ कैश चाहिए, इनकम चाहिए फॉर देयर कंजम्पशन। सो ऐसी रिक्वायरमेंट देखते हुए या और भी किसी विलिंगनेस से मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है कि वी विल अडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ मे बी स्टेबल डिविडेंड, मे बी स्टडी डिविडेंड। ये जो मैनेजमेंट की विलिंगनेस है उस पर भी डिपेंड करता है कि डिविडेंड पॉलिसी क्या होगी। तो अगर मैनेजमेंट या कंपनी के प्रमोटर्स, उनका एक विजन है कि हमें एक स्टेबिलिटी लानी है डिविडेंड की और ये डिविडेंड अच्छा देके गुडविल अर्न करनी है मार्केट में, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी कैसी होगी। दिस इज ऑल अबाउट द determinants or the factors which affect dividend policy in a company. So with examples or maybe with this explanation, you need to know every point here which I have explained here, these 10 points of determinants or the factor of dividend policy.